for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we have this SLO, that is 1463 from our chapter number 14 current and electricity. जैसे हमने previous lecture के अंदर जूल्स लॉ सीखा था और इलेक्ट्रिक पावर सीखी थी, सिमिलरली हमें इस SLO के अंदर उसी इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि जूल्स लॉ के थ्रू डिस्क्राइब होती है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, in which we have these formulas in which energy is equals to VIT and energy is equals to I square RT and energy is equals to V square T over R. तो ये हमारे पास जूल्स लॉ के अकॉर्डिंगली एनर्जीज के फॉर्मूला से इसी तरह से इसी फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक पावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू VI एंड पावर इज इक्वल्स टू I square R and power is equals to V square over R. तो ये वो एनर्जीज और पावर के फॉर्मूलाज हैं जो कि हम यूज करेंगे इन वर्ड प्रॉब्लम्स में अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा. सो यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर से डेटा फॉर्म करके हम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्व करते हैं. वी हैव इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर passes through a bulb connected across a battery of 6 volt for 20 seconds. Find the rate of energy and find the resistance of the bulb. We have the three quantities that are given in the data, that is the current I, voltage V and the time T. तो ये तीन चीजें हमारे पास गिवन है. We have to find the rate of energy and the rate of energy means we need to calculate the power and we also have to find the resistance. So ये हमारे पास हमने इसी क्वेश्चन के अंदर ही डेटा फॉर्म कर लिया. हमें करंट गिवन है I, वोल्टेज गिवन है V and टाइम गिवन है 20 seconds. And we have to calculate the rate of energy and we have to find the resistance of that bulb. तो सबसे पहले जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है पावर और एनर्जीज के लिए. अब हम ये देखते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करके पावर कैलकुलेट करें. पावर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है V into I. तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी गिवन है, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, तो हम इससे जो है वो पावर कैलकुलेट करते हैं. पावर इज इक्वल्स टू VI एंड द वैल्यू ऑफ V इज 6 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट इज 0.5 एम्पियर. So after multiplication of 6 multiplied by 0.5 we will get 3 watts. तो ये हमारे पास उस बल्ब की पावर आ गई. Then we have to calculate the resistance. और resistance के लिए अगर हम देखें तो for example अगर हम यहाँ से resistance calculate करते हैं, so for resistance we need power and we need current. अगर हम यहाँ से resistance calculate करते हैं so we need power and we need voltage. so हम दोनों formulas से जो है वो किसी भी formula से को use करके resistance calculate कर सकते हैं. Let's say I am using the formula P is equals to V square over R. तो अगर हम यहाँ values को substitute करें so the power is 3, voltage हमारे पास given था 36, वोल्टेज हमारे पास गिवन है 6 एंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. यहाँ से R को सब्जेक्ट बनाते हैं, R वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं. सो वी विल गेट 6 स्क्वायर इज 36 डिवाइडेड बाय 3. 36 over 3 is 12. So finally the resistance of that bulb is 12 ohms. तो ये हमने जो है वो इस गिवन डेटा से पावर कैलकुलेट की और रेजिस्टेंस कैलकुलेट की. एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज 500 ohms. वी हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 500, लेट्स से दिस इज R. Then we have to find the power consumed by the bulb when the potential difference is 50 volt. So this is our voltage and we have to calculate the power. पावर कैलकुलेट करनी है हमें
or we have the value of resistance and the value of potential difference. Formula check करते हैं in terms of V and R. So this is the formula in which power is equals to V square over R. तो ये formula apply करते हैं V square over R. The value of V is 50 and the value of R is 500. Values को substitute कर दें. So we will have 50 square divided by resistance is 500. उसको simplify करेंगे. 50 square is 2500 divided by 500. Zeros cancel हो जाएंगे. Remaining हमारे पास बचेगा 5. So the power of that bulb is 5 watts. So जो बल्ब था हमारे पास जिसकी रेजिस्टेंस 500 ohms है, जिसे हमने कनेक्ट किया था 50 वोल्ट की सप्लाई के साथ, the power of that bulb is 5 watts. Similar manner में एक और क्वेश्चन देखते हैं. We have a 100 watt bulb and 4 kilowatt water heater. हमारे पास दो डिवाइसेस मौजूद हैं. One is bulb and the other is water heater. The bulb is of 100 watt. We know that 100 watt is the power, and the water heater is 4 kilowatt, and kilowatt means the power of that water heater is 4000 watts. And they are connected to a same supply of 250 volts. It means bulb gets the potential of 250 volts and the water heater gets the potential 250 volt. We have to calculate the current and resistance of both appliances. हमें current calculate करना है, हमें और दोनों appliances की resistance calculate करनी है. सो ये हमारे पास डेटा फॉर्म हो रहा है. इस डेटा को यूज करके हम दोनों डिवाइसेस के लिए करंट और दोनों डिवाइसेस के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. पावर इज इक्वल्स टू VI, and from this formula we will calculate the current. So we will get current is equals to power divided by voltage. The power of this bulb is 100 watt and the voltage is 250. So 100 watt को 250 वोल्ट के साथ डिवाइड कर देते हैं. So we will get current is equals to 0.4 amperes. बिल्कुल इसी तरह से सेम फॉर्मूले को यूज करके हम करंट कैलकुलेट करते हैं वाटर हीटर के लिए. करंट इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज. सो वी विल गेट द पावर इज 4000 watts and the voltage is 250. So the current flowing through this water heater is 16 amperes. तो ये हमने यहाँ तक दोनों अप्लायंसेस के अंदर वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यूज हमने जो है वो कैलकुलेट की. 0.4 एम्पेयर ऑफ करंट पासेस थ्रू दिस बल्ब एंड 16 एम्पेयर ऑफ करंट पासेस थ्रू दैट वाटर हीटर. Next we have to calculate the resistance of both the appliance. For resistance we know that resistance हम यहाँ से भी calculate कर सकते हैं, resistance हमारी यहाँ से भी आ सकती है. तो हम इन दोनों में से कोई भी formula यूज करके जो है वो resistance calculate करते हैं. Let's say I am using this formula P is equals to V square over R. So for resistance this formula will become V square over P. ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए. सो हम यहाँ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. फॉर बल्ब रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर पावर. द वोल्टेज इज 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पावर इज 100. इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वाटर हीटर की फाइंड कर रहे हैं, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर पावर. देन वोल्टेज इज 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर वाज 4000 वाट्स. सो पावर हमारा रेजिस्टेंस हमारे पास बल्ब के लिए आ रही है 625 ओम्स. हमने 250 के स्क्वायर को 100 से डिवाइड किया है. देन रेजिस्टेंस फॉर द वाटर हीटर इज 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4000, जिससे हमारे पास वाटर हीटर की जो रेजिस्टेंस आ रही है इट इज इक्वल टू 15.62 ओम्स.
सो हेयर इज द एंड ऑफ अ क्लास, जिसमें हमने इन फॉर्मूलाज को यूज करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो अप्लाई किया और इन फॉर्मूलाज को यूज करके इनमें से कोई भी वेरिएबल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम इफ द अदर वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज आर गिवन. So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from this chapter, current and electricity. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to